Good morning, students. Hope you all well. Now, have you gone through the last chapter? See, look, this you are getting a lot of time here, and this time you can give to your self studies. You should give time to your self studies. Make your own notes. That will help you in the time of boards. Now, let us move on to the next chapter of the book Flamingo. That is Lost Spring by Anise Jung. She was the author of the chapter. Now, she was an Indian author. She was born in Raulkela and afterwards she moved to Hyderabad, and her further studies were from United States of America. Now, she was a very famous writer and editor. She used to write also in the newspapers. One of her famous book is Unveiling India. Unveiling India, what has she written? She has written about the life of women in India. So, she used to write about the lives of different category of people in India. Now, the Lost Spring. In this chapter, there are two basic parts. It is divided into two different stories. The characters are different, the story is different, but the main theme of both the stories are same. What is the theme? So, there are two main themes of the story. First, poverty, and second is child labor. First theme, that is poverty, and the second is child labor. गरीबी और बाल मजदूरी के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे. Now, the two stories is sometimes I find a rupee in the garbage. This is the first one, and the second is I want to drive a car. So, in this video, we will deal with the first part of the story. Now, let us start. Sometime I find a rupee in a garbage. This is the story of a small boy, Sahib, who was a rag picker. Now, what is rag picker? जो कचरे चुनते हैं बच्चे, उनके बारे में ये कहानी है. वो rag picker थे. Basically, ये जो साहिब था, he was from ढाका, बांग्लादेश. वो लोग ढाका, बांग्लादेश के रहने वाले थे. और जब वहां पे तूफान आई, बहुत कस के एक बार स्टॉर्म आया और उनका जो भी लैंड था, जो घर था, वो स्टॉर्म में तहस नहस हो गया. उसके बाद वो लोग दिल्ली की तरफ शिफ्ट हो गए, इंडिया आ गए. Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumped of my neighborhood. यहाँ जो ऑथर हैं, ये जब मिली साहिब से, उस समय की कहानी है. साहिब जब रैग पिकिंग कर रहा था ऑथर के नेबरहुड में, तब वो जाकर के साहिब से बात की. उस समय उनको उसका नाम नहीं पता था. वो पूछी कि तुम ये क्यों करते हो? Why do you do this? रैग पिकिंग तुम क्यों करते हो? Sahib left his home long ago. Said amidst the green field of Dhaka, his home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and home. His mother tells him. उसकी मम्मी बताई थी कि वो ढाका में जब वो लोग थे तो उनका स्टॉर्म आया, बहुत बार स्टॉर्म्स आया जिससे कि उनका फील्ड व्हील सब डिस्टर्ब हो गया था, सब खत्म हो चुका था. That's why they left, looking for gold in the big city where he lives now. इसलिए वो लोग को वहां से हटना पड़ा, वो लोग को वहां से जाना पड़ा और वो लोग दिल्ली आ गए in the search of new kind of work, new kind of job. I have nothing else to do. जब ऑथर साहिब से पूछी कि तुम ये कचरे क्यों चुनते हो, why do you pick garbage, तो वो ऑथर क्या जवाब दिया? क्योंकि मेरे पास कुछ और करने को नहीं है. I don't have anything to do. He muttered, looking away. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. मैंने उससे कहा, ऑथर ने उससे कहा that why don't you go to school? तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? मुझे पता था ये मेरा बात जो है वो बेतुका था. राइटर कह रही हैं, मुझे पता था ये जो मैं उससे कह रही हूं कि तुम ये कचरे चुनने के बजाय स्कूल क्यों नहीं जाते, ये बेतुका सा बात था. There is no school in my neighborhood. When they build one, I'll go. साहिब क्या कहा राइटर से कि मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है, जब कोई स्कूल बन जाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा. If I start a school, will you come? Half jokingly. ऑथर क्या पूछ रही है उससे, साहिब से, क्या मैं अगर स्कूल बना दूंगी तो तुम आओगे? Yes, he says smiling broadly. उसने कहा yes, मैं जरूर आऊंगा. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? कुछ दिनों के बाद साहिब ऑथर के पास आया और उसने पूछा कि आपका स्कूल बन चुका है? It takes longer to build a school, I say.
embarrassed at having made a promise that was not meant. वो बोल रही हैं कि कुछ टाइम लगता है स्कूल बनने में, इतनी जल्दी स्कूल नहीं बनता, और उसको ये बात पता था कि उसने साहिब से झूठा वादा किया है. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. लेकिन वो क्या कह रही हैं कि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन लोगों से बहुत सारी ऐसी प्रोमिसेस करते हैं जो कभी वो लोग पूरा नहीं करते. ये सोच के उन्हें थोड़ा बुरा लग रहा है. उस टाइम पे उनका सिचुएशन है, उन्हें गिल्टी फील हो रहा है कि वैसा प्रॉमिस ही मैंने क्यों किया, और मैं क्या, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे प्रोमिसेस गरीब लोगों से करते हैं और जो वो पूरा नहीं कर पाते. After months of knowing him, I asked him his name. कुछ महीने बीत गए, उसके बाद ऑथर जो थी वो उस लड़के से नाम पूछ रही हैं. What is your name? साहिब आलम, he announced. Now what he said? He said his name was साहिब आलम. He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the universe. Now what was the name of Sahib? What was the meaning of the name Sahib Alam? It meant the Lord of the universe. He would have a hard time believing it. अगर उसको पता रहता कि उसके नाम का क्या मतलब है तो उसको बहुत बुरा लगता, या वो बिलीव नहीं कर पाता कि क्या मतलब उसके नाम का और क्या काम वो कर रहा है. Both were totally two different sides. Unaware of what his name represents, he roamed the street with his friends, an army of barefoot boys who appeared like the morning birds and disappeared at noon. क्या कह रही हैं? Irrespective of knowing the meaning of his name, वो अपने नाम का मतलब नहीं जानता है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, वो अपने दोस्तों के साथ खाली पैर, बेयरफुट, खाली पैर स्ट्रीट में घूमते जा रहा है. घूमना फिरना मीन्स वो ऐसे ही इधर उधर भटक रहा है. Street with his friends, an army of barefoot boys who appear like a morning birds and disappear at noon. सुबह सुबह वो लोग कचरे चुनने आते हैं और दोपहर तक वो लोग अपना काम करके अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं. Over the month, I have come to recognize each of them. कुछ दिन बीत गए तो मैं हर एक बच्चे को अच्छे से पहचान सकती थी. Why aren't you wearing chappals? I asked one. मैंने एक बच्चे से पूछा, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. उसने क्या बोला? मेरी मम्मी मेरे लिए नहीं लेकर के आई है. Even if she did, he will throw them off. Adds another, who is wearing shoes that do not match. दूसरा बच्चा फटाक से क्या बोला? दूसरा बच्चा बोला, अगर इसकी मम्मी ला भी देती तो इसको नहीं पहनना था क्योंकि हमारे ट्रेडिशन में ही ऐसा नहीं है. और वो बच्चा क्या पहने हुए था? वो बच्चा भी जूता पहने हुआ था जो अलग अलग था. एक दूसरा जूता था और दूसरा था. वो लोग मैच नहीं कर रहा था. Now, when I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. अब जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो शाई सा हो गया था और उसने कुछ नहीं कहा. I want shoes, says the third boy who has never owned a pair all his life. तीसरा बच्चा क्या बोला कि मुझे चप्पल नहीं चाहिए, मुझे जूता चाहिए. उसने कभी जूता अपने लाइफ में नहीं मिला था उसको. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities, on village roads. It is not lack of money, but tradition to stay barefoot is one explanation. Now, अब ये कह रही हैं कि बच्चे इतने ज़्यादा मासूम थे कि उन्हें वो अपनी पॉवर्टी को कैसे छुपा रहे हैं? अपनी पॉवर्टी को वो ट्रेडिशन बोल के छुपा रहे हैं. उनको इतना पता है कि वो लोग इतने गरीब हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जूते, बट वो क्या बोल रहे हैं कि ये गरीबी के कारण नहीं है, ये तो इसलिए है क्योंकि हमारे ट्रेडिशन में खाली पैर चलना है. ये बच्चों की मासूमियत है जो वो अपनी गरीबी को इस तरह से छुपा रहे हैं. आई वंडर if this is only an excuse to explain away the perpetual state of poverty. ये perpetual state, जो state है वो लोगों के poverty का, वो उसको explanation करके उसको ढक रहा है उस बात से. Now, I remember a story of a man from Udupi once told me. ऑथर को एक स्टोरी याद आती है, एक पुरानी स्टोरी याद आती है एक बच्चे के बारे में. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest.
वो बच्चा अपने स्कूल जब भी जाता था उसके रास्ते में एक मंदिर आता था जहाँ पे उस बच्चे के पापा प्रीस्ट थे। वहाँ पे वो प्रे करता था कि उसे भी एक जूते का पेयर मिले। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in the air of desolation. Drowned in the air of desolation मतलब वो इतना पुराना हो चुका था मंदिर, वो टूट फूट चुका था, लोग वहां जाना बंद कर दिए थे। Hence, इसलिए वो deserted हो चुका था। No longer in use, वो मंदिर अब यूज में नहीं था। In the backyard, where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived, panting, and threw his school bag on the folding bed. वहाँ पे क्या देखी वो, जब वो प्रीस्ट के घर गए, वहाँ पे एक आदमी जो ऑथर को स्टोरी सुना रहा है वो अपना स्टोरी रिसाइट कर रहा है। वो जब वहाँ पे प्रीस्ट के घर गया जो कि बैकयार्ड में था, तो वहाँ पे रेड और व्हाइट कलर के कुछ चेयर्स लगे हुए और एक बच्चा स्कूल से आया, वो सॉक्स एंड शूज पहने हुए था और पैंटिंग, वह हाफते हुए उसने अपना बैग को वहां पे फोल्डिंग बेड पे रखा। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. उस बच्चे को जूता मिल चुका था, जो भगवान थी वो बच्चे की सुन ली थी और उसे जूता मिल चुका था। यहाँ पे ऑथर क्या कह रही हैं? ऑथर कह रही हैं कि जब मैंने उस तीसरे बच्चे को जो गार्बेज रैक पिकिंग कर रहा था, वो तीसरे बच्चे की बात जब वो सुनती हैं कि मुझे भी जूते चाहिए, तो उसका प्रेयर को क्यों नहीं भगवान आंसर करते? और एक प्रीस्ट का बच्चा, एक पंडित जी का बच्चा जब वो मांग रहा है जूता, तो भगवान उसकी बातें सुन लेती हैं। यहाँ पे पॉवर्टी का एक्सट्रीम केस को, उसका दर्द को, पॉवर्टी के बारे में, पॉवर्टी का जो दर्द है वो ऑथर अपने इस स्टोरी में बता रही हैं कि क्यों गरीब बच्चों की बातें नहीं सुनी जाती हैं, भगवान के मंदिर से भी क्यों गरीब बच्चों की बातों का जवाब नहीं मिलता है, और प्रीस्ट के बच्चों का प्रेयर को भगवान जी सुन लेते हैं। The God has granted his prayer. Young boy like the son of priest now wore shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhood remains shoeless. My acquaintance with the barefoot rag pickers led me to सीमापुरी. Now, वहाँ ये सीमापुरी क्या है? जब वो लोग ढाका से वहाँ पे आए थे, दिल्ली का बॉर्डर सीमापुरी कहलाता है। सीमापुरी में वो लोग रहने आए थे, साहिब का फैमिली और बहुत सारे ऐसे बच्चों की फैमिली जो वो लोग रहते थे ढाका से आके, वो सीमापुरी में रहते थे। वहीं पे वो लोग रैग पिकिंग का काम करते थे। अ प्लेस ऑन दी पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के आउटेड साइड में ये सीमापुरी है, बॉर्डर पे। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटामॉर्फिकली। नाउ मेटामॉर्फिकली है तो वो दिल्ली के बाउंड्री में ही, लेकिन मेटामॉर्फिकली वो दिल्ली से बहुत दूर है, क्योंकि दिल्ली हम लोग सब जानते हैं एक बहुत ही बड़ी सिटी और बहुत डेवलप्ड प्लेस है, बट सीमापुरी वॉज डिफरेंट, टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिल्ली। इसलिए मेटामॉर्फिकली मतलब वो एक्चुअली में तो बाउंड्री ही था दिल्ली का, लेकिन ऐसे देखा जाए तो वो बहुत तरक्की वाइज बहुत दूर था दिल्ली से। Those who lived here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. साहिब की फैमिली जो थी वो 1971 में उनके जैसे बहुत सारे लोग सीमापुरी में आके बसे थे। कहाँ रहते थे वो लोग? वो लोग का अपना कोई घर नहीं था, वो लोग खाली बिल्डिंग हुआ वहां पे रह लिए, नाजायज कब्जा करके रहते थे, या नहीं तो फिर अपना टेंट टाइप्स कुछ बना के वो लोग वहां पे रहते थे। Sahib's family is among them. Simapuri was then a wilderness. It still is, but it is no longer empty. In structures of mud. वहां पे घर कैसे थे? मिट्टी के बने हुए घर थे, जिनका छत टिन का बना हुआ था या टारपोलिन का, मीन्स आज के डेट में तिरपाल हम लोग का कॉमन भाषा है। तिरपाल जो होता है मोटा सा सब्सटेंस होता है जिसके थ्रू पानी आर पार नहीं हो सकता है। बारिश में अगर आप तिरपाल के घर में रहते हैं तो बारिश अंदर नहीं आएगा, बारिश का पानी। नाउ डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। सीमापुरी का सिचुएशन बहुत ही खराब था। वहां पे ना तो सीवेज का प्रॉपर व्यवस्था था, ना ही ड्रेनेज का व्यवस्था था। घर भी वहां पे टिन के बने हुए थे, गलियां बहुत ही तंग थी, बहुत पतली सी गलियां थी। अब उसी जगह में 10,000 रैग पिकर्स रहते थे। 10,000 रैग पिकर्स यूज्ड टू लिव इन दैट डिस्टर्ब्ड काइंड ऑफ एरिया।
They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voter list and enable them to buy grains. Now, अब वो लोग के पास राशन कार्ड था. राशन कार्ड क्यों था? आइडेंटिटी के लिए नहीं था. राशन कार्ड वो लोग इसलिए बनवाए थे ताकि वो अपने 2 वक्त की रोटी अश्योर कर सके. उन्हें ये लगे, उन्हें ये पता हो कि राशन कार्ड है उनके पास तो उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी. राशन कार्ड वॉज नॉट यूज्ड एज एन आइडेंटिटी. इट वॉज जस्ट यूज्ड टू फीड देमसेल्व्स. नाउ, food is more important for survival than an identity. This is a very important line by the author. Food is more important for survival than an identity. ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स है और बहुत ही देखा जाए तो इसका मीनिंग बहुत ही डीप है. किसी के भी आइडेंटिटी से ज्यादा जरूरी होता है कि उसका पेट भरा रहे. ठीक है, जीने के लिए आइडेंटिटी से ज्यादा क्या जरूरी है कि उसका पेट भरा रहे. गरीब आदमी से अगर आप कहेंगे कि आपको हम 2 वक्त की रोटी देंगे और आपका नाम हम न्यूज़पेपर में छापेंगे, ये दोनों ऑप्शंस अगर आप उसको देंगे तो ऑफकोर्स वो अपना खाना उसको पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. क्योंकि क्या आगे के लाइंस में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे राइटर, ऑथर क्या बोल रही है यहाँ पे? इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिली एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रादर लिव हियर इन द फील्ड्स we would rather live here than in the fields that gave us no grains. वो कह रही हैं कि हमारा गांव में आइडेंटिटी था, लेकिन यहाँ पे अगर हम अपने बच्चों को, अपने फैमिली को रात में खाली पेट नहीं सुला करके पेट भरा खाना दे सकते हैं और उसके बाद ऐसा लाइफ हम दे सकते हैं जिसमें खाना मिले, तो ये लाइफ ज्यादा अच्छा है. हम यहाँ पे रहेंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू आवर प्लेस वेयर देयर वॉज माई आइडेंटिटी. Through the years, it has acquainted the proportion of says a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful lands of green fields and rivers. जब जो ऑथर थी वहां पे एक ग्रुप ऑफ लेडीज से पूछ रही हैं. ग्रुप ऑफ लेडीज कैसी थी? वो लोग भी they were also very poor, बहुत गरीब थी और टार्टेड साड़ी मीन्स ओल्ड एंड टोन आउट, फटी हुई साड़ी वो लोग पहनी हुई थी. उनसे जब ऑथर पूछ रही हैं कि आप अपना जगह छोड़ करके यहाँ पे क्यों आए, देन वो क्या कह रही हैं कि यहाँ रहेंगे तो अपने फैमिली को हम पेट भर के खाना दे सकेंगे इंस्टेड वहां रहने से. Wherever they find food, they pitch their tents and become transit homes. जहां पे भी उन्हें फूड मिलता है वहां पे वो अपना घर बना लेते हैं. Children grow up in them, becoming partners in survival. बच्चे वहीं पे बड़े होते हैं और फिर वो फैमिली अर्निंग में हेल्प करते हैं. Through the years, it has acquainted the proportion of the fine art. Garbage to them is gold. Now, what is author saying here? Author here is saying that garbage, जो हमारे लिए कचरा है, वो रैक पिकर्स के लिए वो गोल्ड है. That is as precious as gold to them. Because क्यों? क्योंकि उन्हीं से उनको खाना मिल रहा है. वो जब उसमें से रैक पिकिंग करते हैं, कुछ उन्हें सामान मिलता है, वो सेल करते हैं, उससे उन्हें मनी मिलता है, तो उसी से उनका जीवन चल रहा है. इसलिए गार्बेज जो हमारे लिए कचरा है वो उनके लिए इट इज एज प्रीशियस एज गोल्ड, इतना महत्वपूर्ण है उनके लिए कि जैसे कि सोना हो. इट इज देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड. वो ही उनके लिए खाना है और वो ही उनके लिए घर है. इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर. नाउ यहां पे कह रहे हैं ये दो तरह से. नाउ गार्बेज हैज 2 डिफरेंट मीनिंग है. यहाँ पे 2 डिफरेंट मीनिंग है. फॉर एडल्ट इन देयर फैमिली, गार्बेज का मतलब क्या है? एडल्ट्स वहां जो रहते हैं उनके मम्मी पापा, जैसे फॉर एग्जाम्पल साहेब के मम्मी पापा के लिए गार्बेज क्या हो गया? उनके लिए वो हो गया एज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल एंड खाने के लिए खाना मिल रहा है उनको उनसे और घर मिल रहा है. पर बच्चों के लिए यहाँ पे क्या मिल रहा है? बच्चों को उसमें वंडर्स मिल रहे हैं, मतलब नई नई चीज मिल रही है उसको. नाउ हेयर वी विल डिस्कस द टॉपिक द लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. यहां पे आपको समझाते हैं कि यहाँ पे इसका लेसन का नाम लॉस्ट स्प्रिंग क्यों पड़ा. स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. स्प्रिंग का सीजन हम सब जानते हैं. स्प्रिंग का सीजन क्या होता है? स्प्रिंग का सीजन होता है जहां पे फ्लावर ब्लूम कर रहे हैं, अच्छी स्मेल आ रही है, नए नए पत्ते निकल रहे हैं. उसी तरह से बच्चा
Spring season here is compared to the childhood. Okay? Now childhood is a beautiful stage of a human life. यहाँ पे बहुत सारे नए नए चीज बच्चे देखते हैं, बच्चे को सीखने को मिलता है, अंदर अपने अंदर की टैलेंट को वो जानते हैं. अब जब उनका बचपन छीन लिया जाता है उनसे, तो उनको क्या फील होती है? जैसे कि हमारे लाइफ से स्प्रिंग का मौसम ही चला जाए. एक इंसान के सबसे गोल्डन पीरियड क्या होते हैं? उसका बचपन. और उसका बचपन ही जब उसे छीन लिया जाए तो उसके लाइफ में कोई स्प्रिंग सीजन नहीं होगा. It is their daily bread. Okay, we have covered this. Now, I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. Sahib says, his eyes lightened up. वो अपने आंख में उसके एक अच्छी चमक है. वो क्या कह रहा है कि मुझे कभी कभी सिक्का मिल जाता है इसमें गार्बेज में, और कभी कभी 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है. वो मेरे लिए बहुत बड़ा चीज है, वो उसके लिए बहुत बड़ा चीज है. उससे ज्यादा उसको खुशी किसी और चीज में नहीं मिलती. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope of finding more. He's saying that अगर मुझे सिल्वर कॉइन कभी मिल जाए तो मैं रुकता नहीं हूं, मैं और ढूंढने की कोशिश करता हूं. You don't stop scrounging, for there is a hope of finding more. It seems that for children's, garbage has, यहाँ पे बता रही हैं ऑथर कि गार्बेज का 2 डिफरेंट मीनिंग होता है, for the parents and for the children. Garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. नई चीजें खोजते हैं वो गार्बेज में. उन्हें कभी कुछ ऐसी चीज मिल जाती है जिनसे उन्हें बहुत खुशी मिलती है, जो कभी उन्होंने नहीं देखा हो. तो उन्हें लगता है कि मुझे कभी सिल्वर कॉइन मिलेगा, कभी 1 रुपी मिलेगा, कभी कुछ ऐसी चीज मिलेगी जिसे मैं मार्केट में बेचूंगा और मुझे उसके बदले पैसे मिलेंगे. तो वंडर्स, मतलब बचपना है उनमें, बच्चों में, तो वो कुछ नया चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं उस गार्बेज में. वहीं पे पेरेंट्स के लिए वो क्या है? पेरेंट्स के लिए जस्ट इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल. नाउ वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब. एक दिन वो कह रही है, एक विंटर की मॉर्निंग थी, जब वो बाहर निकली तो वो देखी कि एक क्लब है, वो क्लब की बाउंड्री के बाहर साहिब खड़ा है. Watching 2 young men dressed in white playing tennis. 2 young men वहां पे they were playing tennis, and Sahib was watching. I like the game. He hums. Hums means slowly. Hummingbird, you know, they sing slowly. Now, what he says to the author, Sahib क्या बोल रहा है author को कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है, टेनिस मुझे बहुत पसंद है. I go inside when no one is around, he admits. वो बोला जब कोई नहीं रहता है तो मैं अंदर भी चला जाता हूँ, और जो गेट कीपर है वो मुझे अंदर जाने देते हैं, और आई यूज द स्विंग, मैं वहां का झूला भी यूज करता हूँ. साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स. वो क्या देख रही है? वो देख रही है कि साहिब भी एक शूज पहना हुआ है, टेनिस शूज पहने हुए हैं, जो कि उसके डिसकलर्ड शर्ट से और पैंट से मैच बिल्कुल नहीं कर रहा है. Now, someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. वो explain कर रहा है कि किसी ने मुझे ये दिया है. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them. Now, उसमें छेद हो चुका था, इसीलिए वहां पे उसको, जो कोई रिच बॉय था, जो उसमें छेद होने के कारण वो नहीं पहन रहा था, इसलिए उसने उसे दे दिया था साहिब को. Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bothers him. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. But the game he is watching so intentionally is out of his reach. यहाँ पे क्या कह रही है ऑथर? उस बच्चे को जिसने कभी भी जूता नहीं देखा हो, उस बच्चे को अगर मिल जाए छेद हुआ भी जूता या फटा पुराना जूता भी, तो उसके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है. ऐसा उसको लगता है उसका सपना सच हो गया हो, और उससे उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो फटा है या उसमें छेद है. बट जो गेम वो देख रहा था, टेनिस, दैट वॉज बियॉन्ड हिज रीच. दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ. इन हिज हैंड
is a steel canister. Now यहाँ पे the second part of the theme, what was it? It was child labor. यहाँ पे child labor की बात आ रही है. पहला जब हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे थे तो उसमें हमने क्या देखा था? पॉवर्टी देखा था, गरीबी देखा था. अब हम क्या देखेंगे? अब एक सिंपल 1 पैराग्राफ में चाइल्ड लेबर को ऑथर ने बताया है. व्हाट इज चाइल्ड लेबर? दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ. इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनेस्टर. आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड. साहेब क्या बोला ऑथर को? कि मैं अब टी स्टॉल में काम करता हूं. He says pointing in a distance, I am paid 800 rupees and all my meals. उसे क्या मिलता था? 800 रुपया और उसका खाना पीना. Does he like the job? ऑथर क्या पूछी उससे? क्या तुम्हें वो जॉब पसंद है? बट आंसर मिलने से पहले ही ऑथर को उसके चेहरे पे दिखता है कि वो केयरफ्री लुक था उसका, वो अब नहीं रहा. उसके फेस पे जो मासूमियत थी, जो बचपना था, वो अब नहीं रहा. क्यों? क्योंकि वो अब किसी के और के लिए काम करता है. ही इज वर्किंग फॉर समवन, अंडर समवन. उसका बचपना अब उससे छीना जा चुका है. हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक. अब वो उसमें केयरफ्री लुक नहीं था जो बच्चा में हम लोग को देखने को मिलता है. कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं. अब वो लुक, उसकी मासूमियत जो थी उसके चेहरे पे अब नजर नहीं आ रही थी. द स्टील कैनेस्टर सीम्स हेवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली. कह रही है कि वो प्लास्टिक बैग जो था वो इसके कंधे पे आराम से ये कैरी कर पाता था, बट अब उसके पीठ पे क्या है? एक स्टील कैनिस्टर है जो बहुत हैवी है. उसके बचपना पे वो बहुत भारी पड़ रहा है. ओवर हिज शोल्डर, वेरी कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर. द बैग वॉज हिज. वो उसका बैग था. वो जो प्लास्टिक का हल्का बैग था वो उसका बैग था. उसे किसी को जवाब नहीं देना था. वो अपने लिए जीता था उस टाइम पे. द कैनेस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप. बट वो जो कैनेस्टर था वो उसका नहीं था, वो टी शॉप ओनर का था. साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट लाइन इज साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. साहेब वो अब अपना मास्टर नहीं रहा. क्यों नहीं रहा? क्योंकि उससे उसका बचपना छीन लिया गया है. उसे बचपन में ही किसी और के अंडर में काम कराया जा रहा है, जहां पे उसे जवाब देना है, उसे टाइम पे प्रेजेंट होना है, उसे टी स्टॉल मास्टर के टाइम से ही आना जाना है, उसे सब चीज उनके हिसाब से करना है. वो अपने मन से वो कुछ भी नहीं कर सकता. तो हियर वी कंक्लूड द लॉस्ट स्प्रिंग. द लॉस्ट स्प्रिंग मीन्स द लॉस्ट चाइल्डहुड. एंड इस स्टोरी में सिंपली 2 पार्ट में राइटर जो ऑथर है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है एक गरीब बच्चे के बारे में. एंड द 2 पार्ट ऑफ द थीम इज पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर. So, this is really a very touching story written by Anise Jung, and she used to write, she was an Indian author, she used to write on the low grade of society. Now, the next part is I want to drive a car. This we will cover in the next video. So, you go through the chapter, go through the text, and if any problem then please let me know, we shall discuss. Okay, thank you students.